Okay, so let's proceed with this. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Medical News. I'm your host for today, Yusuf Ali, and with me we have two panelists, Mr. Shazad Dedi and Dr. Qasim Ali. Our topic for today is redefining ways of working for mental wealth well-being. Before we proceed, just a safety measure for everyone. Remember, vaccination is open for all of you. If you haven't been vaccinated, please do so. Other than that, make sure you're wearing your mask and you're using your sanitizers daily for your personal benefit. Um, just a safety precaution, please get vaccinated. Vaccinations are available throughout your cities at various centers. Do not waste your time and do not risk your life. Moving on, I'll just introduce my panelists for today. We have Dr. Qasim Ali from the UK. He's been a practicing forensic psychiatrist in the UK for the last approximately 20 years. He has specialized in many areas of forensic psychiatry, and he has many research papers. He's presented his research papers in the UK, in Europe, and in Australia, and even in Pakistan. He initially moved from Pakistan back 20 years ago, and now he's been in the UK for about 20 years now. Our second panelist is Mr. Shazad Dedi. He's a qualified chartered accountant. He has been in the service for many years now and is the CFO of AWTS. He has vast experience in this field, and we hope to have a very fruitful session whereby we can include the learnings of the medical field and the finance field together and inculcate both of them together as one. A lot of people ask me why a medical a medical person and a finance person have been brought together on the same platform. To actually give an answer in very easy words, this time is for inclusivity between every sector of field. Diversity and inclusion, we've heard this a lot of times, but unfortunately, we aren't practicing this. And today, we are actually practicing it to this forum because back in A levels or O levels, we had decided I'm going to be a chartered accountant, I'll be an engineer, a doctor. And today, we are actually seeing how two very vast fields come together as one and how the impact of one comes on another. So a very diverse background of both of these individuals are panelists and a very diverse topic. Let us start with this. So we'll start with questioning our first panelist, Mr. Shazad, on how he actually started his career in the world of finance and how he sees himself grow from where he started to where he is now. So Mr. Shazad, please go. जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग। देखिए, आई एम अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि अभी मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो आई स्टार्टेड माय करियर बैक इन अर्ली 2000। इन फैक्ट ईयर 2000 में ही मैंने अपनी आर्टिकलशिप शुरू की फ्रॉम वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स इन पाकिस्तान। सो उस वक्त एक इवन उससे पहले भी जो एजुकेशन देखें तो एक रेस सी लगी हुई थी, और हमें सबका वही था कि इतने मार्क्स ले लें, दैन उसके बाद सीए में एडमिशन हो, दैन उसके बाद एक रेस थी कि अगर आपको बिग फोर में जाना है तो ये क्राइटेरिया है, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें। सो जो स्टार्टिंग से, बल्कि स्कूल के ज़माने से जो स्ट्रेस फैक्टर था, जो एक रेस का फैक्टर था, वो पहले से मौजूद था। सो आई वाज नॉट एन एक्सेप्शन। तो कि मुझे शायद उस वक्त भी एक फीलिंग होती थी कि कौन सा ये कंपटीशन और किससे कंपटीशन कर रहे हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो रेस वाला जो कल्चर है वो मैंने काफ़ी जगहों पे ऑब्जर्व किया थ्रू आउट माई करियर। मैं सिंगापुर भी रहा तकरीबन 4.5 साल। तो वहाँ की जो लाइफ है वो बड़ी रोबोटिक है। लोग सुबह उठते हैं और मशीन की तरह निकलते हैं। जो उनका जो रेलवे सिस्टम है, जिसको वो मास रैपिड ट्रांजिट कहते हैं, उसके लिए जो लाइनों में खड़े होते हैं, एक एक दो दो मिनट में ट्रेन जा रही होती है। तो इंसान जो है वो रोबोट की तरह उठता है, रोबोट की तरह ट्रेन पकड़ता है, रोबोट की तरह काम पे जाता है। पर्टिकुलर आपके डिफाइंड रूल्स प्रोसेसेस है, ज़्यादातर लोग उस प्रोसेसेस पे काम करते हैं। और जो वैल्यू एडिशन है कि बीइंग एंड क्या कहते हैं जिसको हम के थॉट प्रोसेस में जाएं, सोचें, डिसीजन मेकिंग, ये इवन बड़े लेवल्स पे भी नहीं है, नॉट इवन एट द डायरेक्टर्स लेवल। सो एक रोबोटिक सिस्टम बन जाता है। पाकिस्तान में थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि आप हर लेवल पे कुछ अपना इनपुट भी दे सकते हैं। सो दैट्स पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान। आप यहाँ पे बहुत सारी फील्ड में बहुत कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं।
और ये बात मेरे मुख्तलिफ प्रोफेशन से होती रहती है, इवन डॉक्टर से भी बात होती है। तो जैसे कि जो आपका सिविल हॉस्पिटल का सिस्टम है, दे कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, लेकिन अगर यही डॉक्टर से सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में काम कर रहा है सऊदी अरब में, सो उसके पास वैल्यू एडिशन का जो एक्सपेक्ट है वो कम होता है। सो मुख्तलिफ आपके ऐसे कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, वहाँ के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, और जो जिसको हम डेवलप कंट्रीज कहते हैं वहाँ पे भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो सिंगापुर में मैंने देखा स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत ज़्यादा था। इसी तरह व्हाट आई हर्ड, और जो मेरे दोस्त हैं जो जापान में रहे हैं, जापान में स्ट्रेस लेवल उससे भी कहीं ज़्यादा है। और जो सबसे ज़्यादा जो सुसाइड का जो रेशो है दुनिया में, वो जापान में। तो ऐसा क्यों है कि डेवलप कंट्रीज में इतने सुसाइड के रेशोज हैं? हम डॉक्टर साहब से भी सुनेंगे इस बारे में। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि वाई के डेवलप कंट्रीज में सुसाइड ज़्यादा होती है, और जो हमारे जैसी कंट्रीज हैं जो कि इतनी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज में आते हैं, वहाँ अभी भी हमारा सुसाइड का रेशो कम है। सो बिफोर डैट मेरे पास एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। यूसुफ, आई कैन आई शेयर नाउ? जी प्लीज प्लीज डू सर। जी, सबसे पहला मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, इज अबाउट व्हाई वी वरी। सो डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ? नो? देन व्हाई वरी? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? Yes. Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? No. Then why worry? So this is very interesting कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत? प्रॉब्लम है, कुछ कर सकते हैं तो करें भैया, फिक्र करने की क्या जरूरत? और कुछ नहीं कर सकते, अगर कंट्रोलेबल ही नहीं है, तो भी अगेन फिक्र करने की क्या जरूरत है? Now, दिस इज माई अभी तक का जो मेरा लाइफ का निचोड़ है। 2000 से 2021 तक 21 साल हो गए मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उससे पहले एजुकेशन की लाइफ है। एक बात जो मैंने सीखी वो है कि लाइफ इज नॉट अ रेस एंड यू डू नॉट हैव एनी कंपटीशन। प्रॉब्लम उसी वक्त होता है जब हम रेस में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में जा रहा हूँ एंजॉय करते हुए, चाय पीते हुए, फैमिली जा रही है ट्रिप पे, और अचानक से एक गाड़ी वाला साथ गुजरता है, और वहां से मैं उसके साथ खामा हमें एक रेस स्टार्ट कर। उसने स्पीड निकाली, मैं सोचा कि मुझसे आगे निकल गया, मैंने वहां से अपनी गाड़ी को रेस लेना शुरू। वहां से रेस अगर शुरू होती है तो मुझे बताइए कि मेरा फोकस किस चीज पे होगा? नाउ फैमिली इज टॉकिंग समथिंग, या वो कहते हैं थर्मोस से निकाल के चाय देते हैं, मैं कहूँगा चाय रहने दो, अभी पहले मैं उसको फॉलो करता हूँ। नाउ ये आगे कहीं से फॉर एग्जाम्पल रेड सिग्नल आता है, सो देयर आर चांसेस कि वो दोनों गाड़ियां हम अगर रेड सिग्नल पे करें तो मैं सोचूं कि रेड सिग्नल तोड़ के मैं उसे बीट कर सकूं। यहाँ मैंने क्या किया, एक आपकी वायोलेशन की, एक नॉन कंप्लायंस की, जस्ट फॉर द पर्पस कि मैं रेस में उससे आगे निकल जाऊं। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम रेस वाले माइंडसेट के साथ जाते हैं तो हम बहुत सारी हैप्पीनेसेस, बहुत सारी खुशियां, उन सबको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंडसेट पे हमारा फोकस होता है, दैट इज रेस के हमें वो रेस चाहिए। देखिए, गाड़ी की सूरत में तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ, वैसे ही ये करियर में, ये प्रोफेशनल लाइफ में, ये एजुकेशन में, एक खामखा की हम दौड़ शुरू कर देते हैं। और जबकि कंपटीशन हमारा किसी के साथ नहीं होता, हमारा कंपटीशन होना चाहिए कि वेदर टुडे शहजाद डेली इज बेटर देन यस्टरडेज या 6 months अगो शहजाद डेली। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ये बात अब जाके समझ में आ गई है कि लाइफ इज नॉट अ रेस। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज बीइंग हु यू आर। हम हमेशा दूसरों की देखा देखी शुरू कर देते हैं। स्कूल में भी एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि देखो फला बंदे को देखो, बासित को देखो, वो फर्स्ट आता है। तो जब हम बासित को देखना शुरू कर देंगे वो फर्स्ट आता है, तो एक्चुअली हम उसको, उसके लिहाज से हम अपने आप को मैच करना शुरू कर देंगे। तो यहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं और शुरू कर देते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मेंटोर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे जितने, इवन कंपनीज में भी ऐसा ही होता है, खामा का एक कंपटीशन शुरू होता है। एक जो अप्रेजल सिस्टम होता है उसमें भी अक्सर औकात यही होता है कि आपकी परफॉर्मेंस से ज्यादा एक पीयर परफॉर्मेंस का एक जो, जिसको एक ग्राफ को एक मशहूर है बेल कर्व,
वो बेल कर्व पे हमने लोगों को देखना शुरू कर दिया। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। नो वन आस्क्ड टू बी बोर्न, नो वन गेट्स टू चूज हिज पेरेंट्स और टू हैव अ से इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर पास्ट। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो इस पर वरी क्या करना है। अगेन मेरा ये पॉइंट है कि इस पे अगर कोई अच्छी फैमिली में पैदा हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ, तो क्या, अगर कोई सपोज के पुअर फैमिली में पैदा हुआ तो क्या ये उसका प्रॉब्लम, हम उसको ब्लेम करेंगे। My next point is कि let go of who you think you are supposed to be and embrace who you actually are. Again हम अपना एक इमेज भी बना के चलते हैं एक जहन में कि हमें ये होना चाहिए के चक्कर में हम पूरी जिंदगियां निकाल देते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम एक्चुअली क्या है। अगला पॉइंट अगेन इसी से रेलिवेंट है। ऑल ऑफ अस आर बोर्न यूनिक बट द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ अस डाई कॉपीज। हम अपने आप को समझते नहीं है, हम अपना वाई फैक्टर, अपना पर्पस डिस्कस नहीं करते। देखें, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने सबको यूनिक बनाया और बड़ी प्लानिंग से बनाया। हम उसको कभी सोचते ही नहीं है कि हम आए क्यों यहाँ पे, हमारा पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है। हम एक दौर शुरू कर देते हैं, वो ये कर रहा है, फला कर रहा है, और देखा देखी जिसको हम रोल मॉडल्स बनाते हैं। आई डोंट बिलीव के देयर शुड बी एनी रोल मॉडल इन एनीवन्स लाइफ। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू माइट डिसएग्री, बट मेरा ये ख्याल है कोई किसी के लिए रोल मॉडल नहीं है, हर कोई अपना रोल मॉडल है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अगेन इसी को सपोर्ट करता हुआ कि हम अपनी लाइफ को बैकवर्ड जीते हैं। ऑफन पीपल अटेम्प्ट टू लिव देयर लाइव्स backwards. They try to have more things, more money, in order to do more of what they want, so that they will be happier. हमें हमेशा हर वक्त ज्यादा 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 की तलब होती है। Now, I also hate motivational speakers, a lot of motivational speakers, क्योंकि motivational speakers भी हमें इसी बात पे लगाता है, to have something more, push factor होता है। प्रॉब्लम यही है कि मोटिवेशन की ज्यादातर मोटिवेशन टॉक्स में पुश फैक्टर होगा। I like inspirational speakers because motivation pushes you, whereas inspiration pulls you. Now, again, अक्सर आपने सुना होगा कंफर्ट जोन से निकलो, कंफर्ट जोन से निकलो। व्हाट इज कंफर्ट जोन? तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन नॉर्मल लाइफ की ये है, नॉर्मल इज व्हाट यू आर यूज्ड टू। तो अगर आप कंफर्ट जोन से निकल के डिस्कंफर्ट जोन में जाते हैं, कुछ ऐसे बाद वही आपका नॉर्मल बन जाता है। तो अगेन आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सो यू हैव टू रिविजिट ऑलवेज कि आप किस वक्त आप क्या कंफर्ट जोन में। नाउ ये कुछ 7 टिप्स हैं, मैं क्विकली इसको कह दूं, देन जब आपके क्वेश्चंस होंगे तो उसको फर्दर हम देख सकते हैं। सो मेरा ये व्यू है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, अच्छा एक सेकेंड, व्हाट इज स्ट्रेस? अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन देखूं तो स्ट्रेस इज प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया, बट मेरी अपनी डेफिनेशन है स्ट्रेस इज प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो अगर आप अपनी रेजिलियंस बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी रेजिलियंस नहीं होगी तो आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको स्ट्रेस होगा। नाउ देयर आर फ्यू टिप्स कि ये जो मैं सारी बातें आपसे कह रहा हूँ कि बी हु यू आर, तो ये कैसे स्टार्ट होंगे, ये मेरे जहन में से क्या सजेशन है। तो ये 7 सजेशंस मैंने यहाँ पे टाइप की हुई है। सबसे पहले मेरा बिलीव है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग वाई फैक्टर होना चाहिए। सो एवरीबॉडी शुड आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ हिज हर लाइफ। सेकंड, वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ विजन, द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी नाकामियां भी आएंगी, बहुत सारी चीजें उस हिसाब से नहीं होंगी जिस तरह से आप चाह रहे हो, लेकिन जब आप विजन को फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं होंगी। जो माइनर सक्सेसेस या फेलियर्स हैं वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं रहते व्हेन वी हैव अ ब्रॉड विजन। नाउ थर्ड पॉइंट इज टेक एक्शंस एंड मेक डिसीजंस। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अक्सर औकात फियर ऑफ अननोन में रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हमें रोकता है एक्शन लेने से भी और डिसीजन लेने से। फोर्थ पॉइंट इज थिंक एंड गेट आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स से मुराद है कि एक कन्वेंशनल एक आपका एक माइंडसेट होता है, अक्सर औकात हम उस पर सोचते रहते हैं। जब तक उस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में खासतौर पे, हमारे यहाँ थिंकर्स पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि हम बेसिकली स्कूल से ही उसको सिखा देते हैं कि आपने सोचना नहीं है। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेटनेस। आपकी जो सर्कल्स हैं, जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो मूवीज आप देखते हैं, इन सब का आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है।
My sixth point is have mentors and develop long-term mentor-mentor relationships. So at this stage of my life, जिसमें मैं 40 क्रॉस कर गया हूँ, अब मेरे कुछ मेंटोर्स हैं. लेकिन इनिशियली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरा एक भी मेंटोर नहीं था. मैं अपने टीचर्स को ही समझता था कि वही मेरे मेंटोर है. सेकेंडली इट्स अ मेंटोर मेंटोर रिलेशनशिप. It's not a mentor mentee relationship anymore. So it's just like friendship. जैसे फ्रेंडशिप स्टार्ट ऐसे नहीं होती कि आप किसी के पास जाएं उससे बोलें कि विल यू बी लाइक माय फ्रेंड. वैसे ही मेंटोरशिप इस तरह स्टार्ट नहीं होती कि आप किसी से मिले और बोले कि आप मेरे मेंटोर बन जाए. आई डोंट थिंक सो. इट्स आल्सो लाइक अ फ्रेंडशिप जो कि डेवलप होती है. एंड व्हाई आई हैव मेंशन मेंटोर मेंटोर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की मेंटोरशिप कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक एक फ्रेंड फ्रेंड रिलेशनशिप है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ. अगर आप ये 7 स्ट्रेटजीज फॉलो करें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक आप अपना स्ट्रेस लेवल को भी दूर करेंगे, मेंटल वेल बीइंग के साथ भी जिएंगे, और साथ साथ में ये वो सारी बातें हैं जो आप अपने अपने करियर में, अपने बिजनेस में अप्लाई करें तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी. दैट्स ऑल फ्रॉम मी. जी यूसुफ अली साहब, ओवर टू यू. So thank you, Shahzad Saab, for sharing your insights and knowledge. For the same points, we would take Dr. Qasim's points के डॉक्टर कासिम, आपने अपने एक्सपीरियंस में जितना ये देखा है, जितने लोगों से आपने डील किया है, स्पेशली विद द पेशेंट्स, और पेशेंट्स से जो ऑब्वियसली डील करना इज मोर हार्डर देन अ नॉर्मल पर्सन, बिकॉज वो तो आपको ना चीज़ें बताएगा, ना अपनी वो जहनी कैफियत रिवील करेगा. सो व्हाट डू, एज पर यू, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ being mentally sound and being a fully in a fully mentally healthy situation, कि यानी आपका दिमागी तवाज़ुन जो हो वो बिल्कुल सही हो. So how would you define that as? Well, first of all, thank you very much, Yusuf, for a kind introduction in the beginning. And Mr. Daddy, thank you for a very informative and useful presentation. Yusuf, it's a very wide question. Now, the question of a mental disorder, if you're talking about, will arise from a mental disorder, i.e. the functioning of the mind is abnormal. ठीक है, वो तो जो है क्या हुआ कि ज़हनी मरीज हो गया. जैसे आप डिफाइन करोगे जी ये कार्डियक पेशेंट है. If you define a cardiac patient, everybody has got a heart, everybody has got a blood pressure, everybody has got veins, and the heart is pumping the blood out. But is there an abnormality in a heart? क्या उसकी functioning affect हो गई है? So there are two different things. I don't think, and correct me if I'm wrong, I don't think the topic you want to address today is related to a mental disorder. I think what you're talking about is a mental well-being. The mental and physical well-being falls out of the abnormal parameters. Am I correct? Correct. Yes, exactly. And I think is that I hope that's clear to the audience as well, and of course the speaker. Now, when we talk about mental well-being or a physical well-being, what we are talking about is actually a normal person, a healthy person. How do they maintain their physical or mental health? So, for example, I'll give you an example for physical health. Everybody believes they are fit, and I'm sure they are fit. They don't suffer from any physical health problems. But to exercise, to jog, to have adequate sleep, to have diet, to look after your dietary intake, have some rest, all those things are related to maintaining physical well-being. Similarly, for mental well-being, what would you need to do is to think about what we can do, and both are linked. So, I mean, Shahzad Saab, and I hope he doesn't mind me calling with his first name. He's talked about quite a lot of salient features in terms of the career and given an individual perspective. And I think a lot of us, if not all of us, can relate to the trajectory of a career path we actually are faced with a lot of times unintentionally, because that's born in our minds from our parents, from our school, from our education system, from the societal pressures. And I think that's an accurate description of how we see ourselves growing.
But I think the important point Shehzad Saab has made is actually think out of the box. You know, aspiration is good. Competition is actually very ineffective, as it were. आपको जो है वो एक अपनी मुस्तकबिल के लिए एक करियर पाथ आप चूज करते हो, उसकी एस्पिरेशंस आपको होनी चाहिए, जी मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, या जहां तक भी पहुंचना है, but don't get into competition with anybody else. और शहजाद आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, and I think it's a very cultural thing, especially not only seen in जब मैं बड़ा हो रहा था तब भी थी, लेकिन we also see that in kind of the Asian or the African or the developing countries family background who have already relocated to the Western world. उनमें अभी भी ये सब, उसके बेटे को देखो वो क्या कर रहा है, उसको देखो वो क्या कर रहा है. अरे भाई क्यों देखें, अपने आप को ना देखें. So the focus should be on the, and that's the parental or the societal thing. It's not in one family. उसको क्यों देखें? That even that example is wrong. The focus should be कि आपके बच्चे की क्या strengths हैं, आप उसको cultivate करें, आप एक nurturing environment दें. But a lot of times, the parents themselves get into competition and unintentionally completely get into competitive mode. Start comparing. So if you are exposing children or adolescents to that kind of atmosphere, what do you expect from them in future? They're going to inevitably be competitive rather than aspirational. The focus is not going to be on being a good human being. The focus will be on जी और क्या जी उसके 90% थे, तुम्हारे 91 क्यों है, 89 क्यों है, तुम्हारे 92 क्यों नहीं है. Such a wrong example. That's a very critical approach and not in a healthy way, and that has to be addressed at a societal level. Now, and I'm not actually in any way trying to blame parents or society for it, because I think another very important thing which Shehzad Saab has addressed is actually individual responsibility. अब तो हम सब adult हैं ना, and I hope all the audience are adult. आप blame को छोड़ें, आप अपनी responsibility लें. As I said, aspirations are good. Have a career trajectory if you want, but do it at your pace. Identification, अपनी identity. People spend their whole lifespan and still they don't know who they are. They don't know the answer to that. And I think what is important is to evaluating oneself. What are the key factors for you? What do you want here? What makes you happy and satisfied? Are you doing the job to actually fund the desires of your, I don't know, partner or a wife that she needs, I don't know, new piece of jewelry, or you have to pay for the education of your children, or you want to buy a car? All are valid if you're happy doing that. But how much pressure are you willing to take at the behest of your own satisfaction? Then it goes back to the job satisfaction. Agar hum job satisfaction ki baat karte hain, professional satisfaction. Are you happy in the role you do? Are you happy with the colleagues you work with? Do you have a support network? And what Shehzad Saab was saying is it's already entrenched, at least in the Western world, or at least in the Royal College of Psychiatrists and all. We have peer groups, job mentor to mentor, we have got peer group. It's mandatory to have a peer group. And then I can tell you from my own experience, even within those peer groups, it can be a large peer group, you will inevitably, and it's hard to find, but once you find a small support network, small peer group, which is like-minded, the others are, that's refreshing. I'm a forensic psychiatrist, so I don't know whether people know or not what a forensic psychiatrist is. It's nothing like what you see on the TV. What, as a psychiatrist, we do is we have to mentally assess patients who are mentally disordered and are criminals, and to assess the link between the two and the role mental illness might or might not have played in their offending, in their criminality. And sometimes in my profession, we see patients who have committed heinous crimes. The crimes I'm not going to go into detail with, but they are the heinous crimes. They're the whatever word you want to use. How do I deal with that? Because I have to see them from
a completely non-judgmental, professional point of view. The person who might have killed someone, I'm seeing them from eyes of a patient. Nevertheless, I have to explore their whole criminality in that process. मैं उसके सामने बैठ के ना मैं expressions अपने जाहिर कर सकता हूँ ना मैं कुछ. So that's where the peer group comes in. You have to process that. You have to be eloquent in treating them, forming an opinion. Especially in my role, I have to advise the Crown Courts. जैसे आपकी high courts होती हैं यहाँ पे, high court का judge हमसे पूछता है कि जी इसका क्या करें. So all that, it's a burden. It's a huge responsibility. The judge may or is more likely to rely on what scientific opinion you have given. वो सारी चीजें कहने का मकसद ये कि वो सारी चीजें आप किस तरह डील करते हो. It's very important to have a good support peer group or a mentor to mentor network. आपके अपने प्रोफेशन में भी कुछ ऐसे केसेस आएंगे, कुछ ऐसी डीलिंग्स होंगी जो it's stress related, isn't it? The higher you go or the responsible your job is, the higher the responsibility, higher the burden. I'm in no way I'm discouraging anybody not to take any responsibility, and I think I'm sure the Shehzad Saab would agree. He's a CFO. He knows how much responsibility he carries. It's not hunky-dory at the top. It's very tough. It's very difficult, and that doesn't mean that nobody should aspire to go above and beyond. But what it means is, how do we deal with all those things? How do we find those support networks? How do we make sure that what we want, we achieve it in a timely fashion? And if you are struggling with somebody or an exam or anything like that, have a break, have a rethink. Rethink is very important. वो आपकी mental stability, mental well-being के लिए is very, very important. Why? Otherwise, you're going to be following the same pattern, which in many cases, once, twice, 3, 5 times, has resulted in a similar outcome, i.e. not the outcome you achieve. All those things are very important. Now, in terms of work-related stress and vulnerability, the concept, I don't know if people are aware of the concept of burnout at work. And I think that is that's quite research-based now, but the research has not been present in over 10 years. That the concept has really come out into practice in the last 10 years. और उसमें आपको जो है, what would be the signs? Signs ये होंगे कि जी आप अच्छे खासे अच्छे भले काम पे जाते थे, सब कुछ करते, अब काम पे जाने का दिल ही नहीं चाहता. That's initial signs of vulnerability. या आपकी anxiety बहुत ज़्यादा होती है, या आप काम से वापस ही नहीं आ पाते. You're repeatedly checking your work. You're repeatedly thinking, "Get it? ये तो गलत नहीं लिख दिया मैंने." All those kind of things. The nervousness seeps in, the anxiety seeps in, and then you actually find it difficult to let go. That's one extreme कि जी time management आपकी जो है वो हो गई, जो पहले का आप काम जो है वो 2 घंटे में कर लेते थे, वो पता चला 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, रात के 11 बज रहे हैं अब तक. ये जो भी timings हैं वो आपका काम ही नहीं खत्म हो रहा. Or you are unable to switch off because your mind is still there. उसके साथ साथ आपको biological symptoms नजर आने लगेंगे, lack of sleep, lack of appetite, anxiety, heartburn, all those kind of things. And of course, the productivity reduces. And then what we go back is actually, and there are certain frameworks. Yes, your performance would be evaluated in your annual appraisals. We can't get away with that because the organization or any organization has to meet some targets. Unfortunately, we live in a target-oriented world, and they have to, and it is cost balance, cost effectiveness balance that the employer, any employer would look at, whether it's a health service organization or a non-profitable organization, charitable organization, to actually money-making organizations, which you guys work in, basically. आप पैसा नहीं बनाओगे तो आपकी job line पे है. Unfortunately, हम मरीज नहीं देखेंगे तो हमारी job line पे है. Like, am I doing all right with time? Yes, we are within time limit. Okay, so I think those were the things, and I remember an interesting kind of saying. Usually, when you go to underground,
जैसे मेट्रो होती है, like underground transport system, it says mind the gap. Why does it say mind the gap? Is actually there's a gap. Usually there's a gap between the platform and the train. Never mind. But mind the gap is really important. It's a phrase that's kind of turned into a lot of new things. One of the things we have to think about is mind the gap on yourself. And what does that mean is what you thought you are going to be and what you are now. So suppose we all put a time frame, and then what are you doing about it? And again, I'm going to quote Shehzad Saab that work at the end of the very first slide, worrying is not going to help. It has never helped anybody. What does help is identifying a problem, going to the next step of finding a solution, trying it out and see what the results are. So the evaluation of your own a process of achieving something is really important. And even then, your good colleagues or your seniors can guide you, and please take it as guidance. क्योंकि हमारे उन्होंने कहा था मैंने ये कर लिया, अरे उन्होंने कहा था तो एक बात कही थी उन्होंने. You have to take the message as it fits with your trajectory, with your path you are going to take, and everybody is individual, of course. And I think what Shehzad Saab was saying is there's a famous quotation. I don't think it's Shakespeare, but I do know it's more about God, give me the courage to change things I can. Give me the patience to endure things I can't change. And most importantly, give me the wisdom to know the difference. That is very important. आपको ये find out करना कि जी ये मैं change कर सकता हूँ इस वक्त और ये नहीं change कर सकता is very important. People spend lifetime in changing things they actually can't change. To having the wisdom to know the difference. कि जी ये सही वक्त है change करने का, ये नहीं जी अभी stay put रहना है, या we have to kind of go on, try something different. Doesn't mean that you should not persevere, but persevere and then try. Persevere and try, and that's really, really important. I don't think I've got anything more to add, unless there's something people want to talk about. And to be honest, I didn't know that I had to prepare a presentation, so I thought it was an open discussion thing, but thank you. Amazing insights, Dr. Qasim. I think Yusuf is busy at the moment. So, आपने बहुत सारे मेरे points को जो है वो validate कर दिया, and thank you for that. No, not at all. They were already validated, Shehzad Saab. It wasn't. I'm not here to validate it, but they were very fair and very good points, I must say. जी, अच्छा देखिए एक question मेरा validation के ही हवाले से है. I also used to see a psychiatrist. देखिए साइकेट्रिस्ट मुझे भी कभी जरूरत थी for my mental well-being, so I also visited a psychiatrist, and then she referred me to a psychotherapist. Psychotherapist में 2-4 sessions के बाद उसने एक बात की कि normally you need a validation. Why do you need a validation? क्योंकि मैं उससे पूछ रहा था तो actually मैं उससे validation भी चाह रहा था. So ये बड़ा strong point था उसका कि why do you need a validation? जो आपका एक थॉट प्रोसेस है, जब आप वैलिडेशन चाहते हैं और समटाइम वो वैलिडेशन आपको नहीं मिलती, अप्रूवल नहीं मिलता, फेसबुक पे लाइक्स नहीं मिलते, लिंक्डइन पे आपका पोस्ट ज्यादा सर्कुलेट नहीं होता, लाइक्स नहीं मिलते, तो जब लाइक्स नहीं मिलते लोगों को फेसबुक पे जो कि जनरली मिल रहे होते, या लोग वैलिडेट नहीं करते या लोग अग्री नहीं करते, तो वहाँ एक स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ जाता है. दूसरा उसी से मेरा रिलेटेड एक सवाल है, वो ये है कि जब हमें एक आदत होती है ना कि एक पोस्ट पे 200 लाइक आता है तो हमें डोपामीन मिल रहा होता है बहुत तेजी से, बहुत सारा डोपामीन मिल रहा है. अचानक डोपामीन नहीं मिलता, कभी किसी पोस्ट पे एक भी लाइक नहीं आता, 1-2 लाइक आता है, तो वो डोपामीन हमारा बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है. आई वांट टू आस्क यू हाउ डू वी हैंडल दैट सिचुएशन, वैलिडेशन एंड रिलेटेड टू डोपामीन.
Very good question, शहजाद साहब. Now, first thing देखें उसमें ये है कि जो validation वाली बात है वो जो है आपकी upbringing में हमारा जो culture है उसमें शामिल हो जाती है. तो जब हमें gold star मिलता है तो we are a good child, we are a good pupil, we are a good student, and as we come across जी distinction आई ये आई और उसमें जो है अच्छा ये एक process है which is good, encouraging, positive feedback process हो गया. अब पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस जो है उसको हम कॉन्फिडेंस में कैसे बदलें. जो आप बात करें जी एडल्ट लाइफ में आके हमारा कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हमें उस पॉजिटिव फीडबैक की जरूरत ना पड़े. बट दैट इज लिंक्ड टू द पॉइंट यू मेड, कंपटीशन. तो वो लाइकिंग जो है वो आपके लिए नहीं. उसको 200 मुझे 250 मिले, उसको 249 मिले थे तो मैं बेहतर. दैट हैज टू बी ब्रोकन. उसमें क्या है, एक बड़ी अच्छी एक कोटेशन है कि कॉन्फिडेंस इज नोइंग दैट देयर इज नो कंपटीशन. You're not competing with. Self-confidence is not that I have to compete with someone. वो अपनी satisfaction के लिए कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ, I'm satisfied with it. So जो internal satisfaction है कि आपके जो अपने core beliefs हैं, आपके अपने जो एक psychological standards हैं, उसके हिसाब से अगर आपने काम सही किया है, that you are satisfied and happy, and that in itself is a process to build. उसके लिए आपको बाहर से validation की जरूरत नहीं पड़ेगी. And I think the point I was making in the beginning is have aspirations. कि जी मुझे I want to become, I don't know, fellow of the Royal College next step, or maybe the clinical director. Am I rushing to get it? No, I will. Or if I don't, I'm happy with where I am, giving personal example kind of thing. So those things, even when in the younger age, of course, the time is ticking against as well, because people want to have a life, whatever life in inverted commas society accepts. जी job है, शादी है, बच्चे हैं, you know, these are landmarks and no denying it. लेकिन आप अपने पेस से इतना देर में भी ना छोड़ें, 60 साल में शादी ना करें, या कर भी लें तो कोई बात नहीं, दूसरी करें, तीसरी करें, आपका दिल चाह रहा है चौथी करें, एक साथ नहीं. जो भी करना चाहते हैं, but you should be confident to what you are doing. If you are confident, not overconfident, confident within the means or within the limits of society and law, then it is fine. तो आपकी जो validation है वो चल जाती है. Second point जो neuropathways का है, तो उसको हम कहते हैं, देखें ये जो है, ये जो analogy है, ये likes वाली ना, I don't want to use it, but I think it's already been coined. लोग कहते हैं it's addictive. Why is it addictive? क्योंकि हमारे जो dopamine receptors हैं, वो frontal lobe पे affect करते हैं. उसमें क्या है, एक होता है immediate reward or long-term reward. जो रिस्पॉन्स क्यों, इसलिए कि ऑडियंस सामने बैठी ताली बजा रही है ना. वो तो फिल्म जब चली तो वो किसने देखी, कहां, मुझे तो फीडबैक नहीं मिल रहा. सॉरी, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, लेकिन वो फीडबैक नहीं मिल रहा ना. तो दैट इज द इमीडिएट फीडबैक. और वही पैरेलल्स आप देखें ड्रग एडिक्शन में भी आपको ये मिलेगा. वो क्या है, वो इमीडिएट किक है ना, हाई की. ये क्या है, हमें जो है लाइकिंग जो है वो क्या कर रही है, हमारी ईगो को जेंटली स्ट्रोक कर रही है ना. वो अरे हाँ, अरे 4 लगे थे, अरे 10 लगे हैं, फिर वो 12 हो गए, फिर वो 1000 हो गए जी. And the irony is the society is condoning it. क्योंकि आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी, उनके तो 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, चलो भाई वो तो सेलिब्रिटी हो गए, वो उससे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, आई डोंट नो. लेकिन एक जो आप कह रहे हैं ना, रेस है, एक दौड़ लग चुकी है जी, एंड दैट हैज टू बी डिस्करेज्ड. फर्स्ट, फेसबुक और एनी सोशल मीडिया इज गुड टू कम्युनिकेट एंड टू शेयर टू अ डिग्री, दूसरों की प्राइवेसी का वो करें, लेकिन ये कि दूसरों के, अरे अगर आप एक तस्वीर खींच के आप आईने में देखने कहते जी मैं तो आज तैयार होके अच्छा लग रहा हूँ, दैट शुड बी सफिशिएंट. दुनिया कहे या ना कहे, चाहे आपने धोती बांधी हुई हो. जो आई मीन, द थिंग इज, एंड आई थिंक उसमें जो है वो ट्रबल है कि लोग जो हैं वो स्क्यूड हो गए हैं, दूसरों के ओपिनियन को बहुत ज्यादा मैटर देने लगे, और उसमें जो है दे गेट लॉस्ट, they forget their own opinion. किसी ने कुछ कहा, अरे तुमने ये क्या लगा लिया, तो फौरन कपड़े, who cares?
वो तुम जानते भी नहीं, पता नहीं वो कोई अमेरिका में या पता नहीं साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ किसी ने कोई कमेंट लिख दिया जिससे तुम जिंदगी में कभी भी नहीं मिलोगे, ना तुम्हारे मिलने की उम्मीद है. There's so many barriers, but suddenly those opinions are weighted to a degree that is unbelievable. और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है. आप देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा बुलिंग हो रही है स्कूल्स में, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो हो रही है. वो जी लाइक नहीं लगे, sideline kar diya, they've been orchestrated from the groups, these young children, and it's affecting their mental health. Their stress levels are high, they're becoming anxious, they're self-harming, and the trajectory goes on and on and on. Long answer to a short question, but there we are. Yes, thank you, Dr. Saab. A very insightful and practical reality of the society we're actually living in. More like, log kya kahenge? Since the last few years, it has been very famous. Log kya kahenge? But still, people believe log kya kahenge. That is more important than main kya hoon. Once again, reiterating your point. Moving apart from the personal life towards our corporate life. If we put the same stance towards our corporate sector and we say that मेरी जिंदगी उस कॉर्पोरेट सेक्टर में, उस वर्किंग एनवायरनमेंट में किस तरह चल रही है, एंड हाउ डज दैट अफेक्ट मी एंड माय लाइफ एंड माय फैमिली. मैं 9 to 5 जब करके घर से निकल रहा हूँ, एंड व्हेन आई गो बैक होम, एम आई एट माय फ्री पीस ऑफ माइंड, या मैं वही टेंशन है जो मैं 5 बजे लैपटॉप बंद करके उठा था, वही मैं लेके घर गया. सो दिस फॉर द नेक्स्ट few minutes we'll discuss on this, and I'll ask a few questions with regards to this, and we'll begin our conversation. So we were a few slides ago we were discussing about the workload and excessive workload. So how does that disharm you, how does that affect you? Unfortunately हमने ये चीज काफी notice करी है that even every employee at some point faces workload to a certain extent. Temporarily workload for a certain task is okay, acceptable, and we appreciate it because that makes you stronger as an individual. That makes you actually realize, are you able to cope up with the difficult situations? But unfortunately, COVID के time पे, in the last 2 years and beyond that, we've seen workload tremendously बढ़ गया है, and there is no check and balance over it. Managers भी होंगे, वो they're not actually tracking you. Then कोई आपसे feedback नहीं लिया जा रहा यार, are you actually overloaded with the work? Like you said, burnout, are you on a burnout situation? And जो employees हैं, even they are at a very alarming situation कि वो भी नहीं बोल पा रहे हैं अपने मैनेजर से कि यार मेरी बस हो गई है and I think I cannot take it more. So let's go to a win-win situation and let's meet at a point where it's acceptable for you and me. So शहजाद साहब, अगर आप थोड़ा सा अपनी corporate life से इसमें enhance करें कि as a CFO, you have a lot of people working under you. How do you manage stress for them कि उनकी जिंदगी भी सही रहे and all those people connected with them उनकी जिंदगी भी सही रहे? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, ये तो डे टू डे चैलेंज है और आई डोंट थिंक आई हैव बीन परफेक्टली हैंडलिंग दिस. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब हम इंटरव्यू करते हैं, और मैं अपना भी अगर देखूं कि मेरा जो पैशन रहा है वही, फॉर्चुनेटली मैं वही काम कर रहा हूँ. हाँ, कभी कभार ऐसे काम आते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, उसमें से कुछ आई एम पैशनेट अबाउट एंड कुछ आई एम नॉट पैशनेट अबाउट. तो जिस काम में पैशन होता है उसमें वर्क फील नहीं होता. तो जो आप कह रहे थे कि जो 9 to 5 के बाद जब आप घर जाते हैं तो क्या स्ट्रेस लेके जाते हैं, तो अगर मैंने सुबह से उन्हीं चीज़ों पे काम किया जो मेरा पैशन था, तो एनर्जी एक्चुअली चार्ज हो रही थी. तो जब हम जाते हैं घर पे तो बैटरी डाउन नहीं होती. बैटरी डाउन कब होती है? जब हम सुबह से उन चीज़ों पे काम कर रहे हो जो हमारा पैशन ना हो. तो बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं व्हेन आई फील लो, बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं व्हेन आई लीव दिस वर्क विद हाई एनर्जी. सो ये दिन हर किसी की लाइफ में आते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में आते हैं. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट. अच्छा, यही सारी चीज़ें हम एक मेंटोरिंग करते हैं अपने स्टाफ के साथ. सबसे पहले जब हायरिंग के वक्त हम देखते हैं कि जो बंदा जिसको हम हायर कर रहे हैं उसका पैशन क्या है. नॉर्मली मेरा एक सवाल जनरली सबसे होता है द टाइम ऑफ हायरिंग कि व्हाट्स योर पैशन. और अगर उसका पैशन जो है वो अकाउंटेंसी या वो नहीं होता, तो मैं समटाइम उसको एडवाइस भी करता हूँ कि डोंट कम हियर फॉर मनी, क्योंकि मनी जो है वो कभी भी पैशन नहीं होता. पैशन उस चीज़ का नाम है जो मैं फ्री में करने के लिए तैयार. मेरी अपनी डेफिनेशन है पैशन की, जो काम बगैर किसी पैसे के, बल्कि मैं पे करके भी वो काम कर सकता हूँ,
दैट्स माय पैशन। जो काम मैं सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए कह रहा हूँ वो मेरा पैशन नहीं हो सकता। बहुत ही कम लोग होते हैं उनका पैशन ही प्रोफेशन बन सकता है। मे बी इट इज शाहरुख खान ओपनली कहता है कि जो मेरा पैशन है वही मेरा प्रोफेशन है। तो बहुत कम लोग हैं। अच्छा, दूसरा ये कि समटाइम यू चेंज योर प्रोफेशन या फिर आप उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। तो मेरे कुछ पैशन है, आई एम गुड एट कनेक्टिंग विद पीपल, सो दैट्स व्हाई हमने एक फोरम बनाया। दूसरा ये कि बहुत सारे वो इस तरह की नेटवर्किंग है, कोऑर्डिनेशन है, कुछ चीज़ों पे मुश्तरका तौर पे काम करते हैं। कोलैबोरेशन इज द कीवर्ड नॉर्मली आई यूज। तो बेसिकली आई हैव आइडेंटिफाइड, और दूसरा मैंने अपने आप को रीस्किल किया और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। आई एम स्टिल डाइवर्सिफाइंग माई सेल्फ। मे बी 5 years 10 years डाउन द रोड मैं किसी कॉर्पोरेट में शायद इस तरह से काम ना कर रहा हूँ जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो आई हैव स्टार्टेड माई ओन जर्नी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टीवी शो स्टार्ट किया है। For example, we are doing a lot of webinars on various topics. For example, we are doing some research work with some university. तो sometime आपका work आपका पैशन होता है, लेकिन वो भी कुछ अर्से के बाद जब आप उसमें एक्सेल हो जाते हैं, then you look for something else. यानी शुरू में हमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में बड़ा मजा आता था। आज हमें अकाउंटिंग या ऑडिटिंग जो हमें 20 साल पहले अपील करती थी, आज अपील नहीं करती। तो पैशन भी आपके चेंज होते रहते हैं। तो वही है जस्तजू के है खूब से खूब तर कहा, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहा। तो ये बड़ी अच्छी चीज हमने वो जो उर्दू में हमने पढ़ी थी शायरी, तो उससे हमें बड़ा वो पता चला। हमने वहीं से अज़्म जज़्म का सबक सीखा, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। ये जस्तजू वाली बात बताइए जो मैंने आपको, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ है। मैंने आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं देखा अब मोर देन 40 years की लाइफ में जिसका स्टार्ट से एक ही पैशन हो और एंड तक उसके आखिर में मरते वक्त तक एक ही पैशन हो। प्रोफेशन हो सकता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मुंशी बने थे अपने स्टार्ट में और एट द एंड ऑफ लाइफ भी मुंशी रिटायर हुए या मुंशी के तौर पे उनकी डेथ हो गई। देयर हैव बीन सो मेनी पीपल। या ऑडिटर्स स्टार्ट हुए, एट द एंड ऑफ लाइफ भी ऑडिटर्स हुए। तो प्रोफेशन तो मैं मान सकता हूँ कि आपका स्टार्ट से लेके एंड तक रहे, बट पैशन एक साथ नहीं रहता आपका। तो मेरी की एडवाइस क्या है इसमें, मैं लोगों को जो आपने कहा कि आप कैसे मैनेज करते हैं, तो मैं नॉर्मली पैशन खुद भी अपना भी आइडेंटिफाई करता हूँ और मैं अपने लोगों को भी कहता हूँ आइडेंटिफाई योर पैशन। अगर आपको एक काम में नजर नहीं आ रहा, वो आपका पैशन नहीं है, देन लुक फॉर एनीथिंग एल्स। और हम इसको विद इन डिपार्टमेंट ये मैनेज करते हैं कि ट्रांसफर कर दे। अगर किसी का पैशन अकाउंटिंग नहीं है, ऑडिटिंग उसका पैशन है, ऑपरेशन उसका पैशन है, मार्केटिंग उसका पैशन है, सो ही शुड मूव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो एक तो ये हेल्प वाली साइड हो गई। बाकी 100% आप कभी कर ही नहीं सकते कि हर डे वन को रोजाना में आऊँ 9 बजे से 5 बजे तक मेरी हमेशा एनर्जी ऊपर जाए या मेंटेन रहे और 5 बजे के बाद मैं हैप्पीली जो है वो घर जाऊँ खुशी खुशी। ये पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल में हर किसी के लाइफ में लोज भी आएंगे, अप्स भी आएंगे। तो उसमें हम किस तरह से मैनेज करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज अगर मैं लो फील कर रहा हूँ तो आई नो कि कल दोबारा सुबह होनी है, वो मेरी होप है। तो होप मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी है हमसे। तो जब होप रहेगी, इंसान वो क्या कहते हैं, उम्मीद से बंदा उम्मीद से घायल है, उम्मीद से ही बंदा है और उम्मीद से ही घायल है। मतलब उम्मीद पे ही कायम रहते हैं और उम्मीद की वजह से ही जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उसी की वजह से हमें समटाइम्स प्रॉब्लम भी होती है, समटाइम हम डिससेटिस्फाइड भी होते हैं। थैंक यू शहजाद साहब। डॉक्टर साहब, आप कभी इसी पॉइंट पे थोड़ी सी से लेंगे दैट इन योर प्रोफेशन लाइक यू सेड यू नीड टू मैनेज विद क्रिमिनल्स एंड ऑल, अब वो हाउ डू यू योरसेल्फ मैनेज वर्कलोड एंड स्ट्रेस इन दैट? बिकॉज अगर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कोई क्रिमिनल है, वो ही इज नॉट एडमिटिंग, ही इज नॉट आंसरिंग कि यार मैंने क्यों किया, कब किया, क्या किया। अब आपने इतना टाइम लगाया, आपने टेंशन में आ गई यार ये तो कुछ बता ही नहीं रहा। So in that situation, how do you get yourself out from it and how do you see that situation as आपकी जिंदगी में उसका किस तरह फर्क पड़ा है? Okay, so इसको जो है आप इस तरीके से देखें कि एक मरीज है, नहीं एडमिट कर रहा, कोई बात नहीं। देखिए फैक्ट्स, एक आपके पास फैक्ट्स हैं, वो एक आपकी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, क्लिनिकल असेसमेंट, ठीक है। अगर मेंटल इलनेस को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बहुत सारे मेंटली अनवेल पेशेंट्स जो हैं, the challenge in mental illness or treating mental illness or in psychiatry is that the patients usually don't think that they are
unwell. In any other field, the patient will come to you with a problem. In psychiatry, the patient is usually brought by the family members or their friends that they are not right, but they don't think that they're not right. So वो तो part and parcel of हमारे job है, उसका तो कोई मसला नहीं है, हम trained हैं उसको deal करने के लिए. I think wider question is कि आप workload कैसे manage करते हो? And workload management का आप ये देखिए कि normal life में अगर आप कुछ ना भी करें तो कुछ दिन आपके अच्छे होंगे, कुछ दिन आपके इतने अच्छे नहीं होंगे, कुछ दिन आप सोचेंगे you get up and you're full of beans and you have lots of energy and you get very productive day कि जी ये फाइल भी देख ली, वो फाइल भी देख ली, मरीज भी देख ली, एडमिट डिक्टेट कर दिया और any other field ये काम भी हो गया, everything runs smoothly as it should क्योंकि आपका माइंड फ्रेम जो है वो उस वक्त अच्छा हुआ होता है. और उसी के साथ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि दिल ही नहीं चाहता लेकिन फिर भी हम काम पे जाते हैं. हर शख्स काम पे जाता है, काम करता है, वो they're not so productive days. Nevertheless, some work is done. फिर आप खुद ही आपकी एनर्जी लेवल्स जो है वो पिकअप हो जाते हैं, आपका माइंड फ्रेम जो ब्राइट हो जाता है. तो ये तो नॉर्मल वेरिएशन ऑफ मूड है जिसका मेंटल डिसऑर्डर से या किसी भी डिप्रेशन या बाइपोलर से कोई ताल्लुक नहीं है. ये एक नॉर्मल पैटर्न ऑफ मूड वेरिएशन है जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने दी है. इज बायोलॉजिकल, इज इनहेरेंट. आप इसको जो है वो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारी रातें हम लोग सही सोते हैं, बाज रातें होती हैं जो नहीं सो पाते, सुबह थके थके होते हैं. जरूरी नहीं है कि हमें स्लीप डिसऑर्डर हो गया, वो दूसरे दिन आते हैं जो खुद ही आराम से जो एक दो दिन बाद या उसी दूसरे दिन रात को आराम से थक के सो जाते हैं या जो है वो धूप के चश्मे लगा के ऑफिस की कुर्सी पे सो जाते हैं. सॉरी दैट्स जस्ट अ जोक, बट यू नो these things do happen. ठीक है, तो इस चीज को जो है वो मेडिकलाइज करना अच्छा नहीं, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी है. इसकी आइडेंटिफिकेशन इसलिए अच्छी है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है पर्सनल लाइफ का और वर्क का बैलेंस जो करना है. डिस्क्रिप्टिव, अगर आपकी 9 to 5 डिस्क्रिप्टिव जॉब है तो डजंट मीन दैट यू विल स्टार्ट योर पेन एट 9 o'clock. यू आर नॉट अ कंप्यूटर, वी आर नॉट रोबोट्स. ये विंडो नहीं है जो जी अब ये खत्म हो गया, इस विंडो का काम, इसको बंद कर दी तो वो ऑफ हो जाएगी. इट्स अ ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, आप चीज को जो है वो काम अगर आपने खत्म कर दिया इसका मतलब ये नहीं होगा आपके जहन से निकल गया. You take public transport, you drive, you go to lunch, you go wherever. At the back of it, some of it, that's why it takes time. तो इसलिए जो है देखें वेस्टर्न कल्चर में हमारे यहाँ शायद पाकिस्तान में भी अब इंट्रोड्यूस होता जा रहा है, लोग लेते हैं हॉलिडे पे जाएं. So that is the time when you completely break, or you try to at least completely break away from it. और उसमें भी जो है unwind होने में टाइम लगता है. You can't straight away unwind. I see for myself, unless I have a 2-week holiday, the first week I can't just finish on Friday for a 2-week holiday and suddenly my brain is off work. It takes me good 3 to 5 days to let go of work. And then I completely, or as much as I can, I unwind for 5-6 days. And then आपको जाने से पहले फिर आपका जो है वो प्रोसेस क्यों, इसे काम है and it's important. काम जो है उसको burden ना ले. काम is, work is important for 2 reasons. First of all, it occupies your mind in a constructive way, as long as you are not involved in dirty politics. And please don't deny there's always politics. Politics is in human nature, whether it's in organizational politics, office politics, or whatever you call it, it's always there. But keep it clean, keep it safe. That's how you have to function. That will keep you out of troubles usually. और unwind करें, बहुत से लोग swimming करते हैं, walk पे जाएं, it clears your mind. It does clear your mind. अब पाकिस्तान में तो वेदर ऐसा नहीं है ना, बहुत से लोग कहते हैं जी सेफ्टी भी नहीं है. I completely understand कि भाई आप नहीं जा सकते. बहुत से लोगों ने जिम ज्वाइन कर लिया. कोई एक्टिविटी करें जो कि आपकी जो है वो दिमाग कहीं और लगे. So it will keep you healthy and motivated, and of course it's good for your mental well-being. जहां तक ऑर्गेनाइजेशन का देखें, आपको मैं एग्जांपल दूं. We talked about pandemic and the burden of pandemic and how it has affected it. Now you can say that I'm completely biased. I think I am to a degree biased, but I'm going to try and give a very unbiased opinion on the UK, how England or UK has functioned. From March 2020 up until at least March 2021,
the finance minister and the government, let's say the UK government, rightly so, said to people, stay at home. Fair enough. And they paid 80% of their salaries. The government paid everybody 80% of their salaries maximum to stay at home. Don't worry about the finances. We will do it. Absolutely fine. No problem with it. Very good for the safety. अब जनाब क्या हुआ, साल 1.5 साल गुजर गया. NHS तो NHS is the National Health Service Organization, जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ पे सारा गवर्नमेंट पे करती है. सारे डॉक्टर, नर्सें, ऑक्सिलरी स्टाफ, डोमेस्टिक स्टाफ, क्लीनर्स, अस्पताल तो सारे खुले रहे ना. जो बीमार हुआ उनको डॉक्टर, नर्स, जो भी अस्पताल का अमला था उसने देखा, एम्बुलेंस वाले सब ने, they have been working throughout. ठीक है. Government printed 3 billion. Government paid up to 3 billion pounds to people to stay at home and all this. अब जब ये खत्म हो गया, जब डॉक्टर और नर्सों की सैलरीज बढ़ाने का 1%, it's a slap in the face. पे हमने तो जो है वो पूरा जो मरते के जीते के हमारे मर भी गए, हमारे डॉक्टर भी मर गए, नर्सें भी मर गई, आपके मरीजों को भी संभालिए, और हमें रिवॉर्ड क्या मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, जो कभी जो बंद नहीं हुई, जिसने सारे थ्रू आउट एज ए नेचर ऑफ द सर्विस काम किया. भाई NHS का तो काम ही है मरीजों को देखना, मरीजों को देखा पूरे इस पेंडेमिक में, सही कर दिया, उन्हें सही भी कर दिया. और आपने मतलब ये कि 90% पॉपुलेशन को तो घर में बिठा के 80% तनख्वाहें दे दी, और जब हमारी बारी आई कुछ रिवॉर्ड देने की तो आप कह रहे हो कि 1% रेप्लिकेटेड टू अबाउट 15 pounds a month to a nurse salary. It's worse than slapping in the face. जो आप बात कर रहे हो ना ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको देखती है. So how, उसका क्या हुआ है, उसका impact क्या है? All the morale, all the enthusiasm, all the passion about the caring profession, about the healthcare profession, which arose to its limits during the pandemic, is dying down. People are going to leave. The new generation is not going to be applying for nursing or the doctors because they know what they've been given back. It's human nature. When you put an effort, you don't expect a reward. But when you compare, and at some stage you will compare, so I think that those are the lasting effects on people when they carry too much. Like the point you were alluding to, Yusuf, is as an organization, what organization? It becomes discouraging for the employees. It becomes discouraging for the newer generations to choose a profession. And then we end up in a situation where there are not enough people to function. And then, of course, we've got a huge problem of brain drain. You see, I'm sitting in the UK. I was qualified in Pakistan as a doctor. And after that, I came to UK and got all my training, and I'm here. मैं पाकिस्तान वापस लेके क्या आया? असल पैसा तो पाकिस्तान ने मेरी एजुकेशन पे लगाया था ना. It's a brain drain. It's a brain drain starts to happen. और यहाँ पे हो रहा है, लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं. They're brain draining from UK because they say हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है. So the valuing your staff is quite important. और आप डिटैच नहीं कर सकते, आप उसको जो है, क्योंकि it's a profession. You've chosen to be, whether you have or you are where you are. You can't just undo all and restart again. I hope everybody had the courage, but it will take a lot of time. Or true passion तो आपको true artist में ही मिलेगा. And you're not gonna find the Renaissance artists like, I don't know, Botticelli or Van Gogh or Rembrandt in these areas. जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ पेंटिंग एंड स्कल्पचर में लगा दी, उनको वो भूखे मर गए, और बाद में जो है वो 30-50 मिलियन पाउंड्स की उनकी पेंटिंग्स बिक रही हैं 100 साल बाद. तो ट्रू पैशन तो वो होता है, वो शुरू से आखिर तक उसी में रही, उसी में मर गए, and they didn't know, and they didn't want to know anything about other worlds. But people like you and me, we need to live a life as well to whatever standards are in society, and we want to do good. We want to have a comfortable life. We don't want to suffer, but at the same time, we shouldn't be too competitive that it actually backfires, that you get consumed in it, that you don't even enjoy that.
जी मैंने जो है वो आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मैंने आईफोन आई डोंट नो 6 7 व्हाटएवर लिया, अब मैं बहुत खुश हूँ, मैंने देखा बराबर वाले के पास आईफोन आई डोंट नो 8 आया था नहीं आया था 9 11, अब मुझे आया आईफोन, मैंने एंजॉय क्या किया उसे, व्हाटएवर यू अचीव जस्ट एंजॉय and then look ahead, don't get into competition straight away. I think that's and the workload, yes, you have to balance it, but there will be days you have to stay late and what, or That's somebody has to part do and the parcel. job. Yeah, not everything about a job is always good. There's lots of paperwork, there's lots of meetings, there's lots of training, the training you don't like but you have to do, the training you like you have to attend, all those kind of things, that's part and but that's life. Correct. So the key takeaway is employees run the organization. The organization doesn't run the employees. Organization pays the employee for his work, but if the organization feels मैं हूँ सब कुछ and जो काम करने वाला है वो कुछ नहीं, then unfortunately we've seen many organizations with that mindset where the employees just leave, they resign because they cannot take the stress. And that's very important, that every organization needs to value its employees, every manager needs to value the person working under him, make sure his productivity is not affected by the workload, make sure his productivity is not affected by the environment that's created. And Shehzad Sahab would highly agree with this, कि unfortunately there's a term which you're using, a toxic culture. And ये काफी लोग कह रहे हैं कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे ग्रुप में एक टॉक्सिक कल्चर क्रिएट हो गया है, मैं काम नहीं कर सकता, इधर लोग मुझसे अगेंस्ट हो गए या मैं उनके अगेंस्ट हो गया हूँ एंड हमारी नहीं बन रही, एंड दैट्स वेयर इट फील्स लाइक यू आर डिटैचिंग फ्रॉम द कोर ऑर्गेनाइजेशन. Moving on, we discussed a while ago that we have a norm, one size fits all, जो कि हम ये कहते हैं कि यार वो ऐसा तो मैं भी ऐसा, मैं ऐसा तो वो भी ऐसा होना चाहिए. एंड अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशन में भी वन साइज फिट्स ऑल वाली ही चीज चल रही है कि यार इस लेवल का आपको भी होना है, इससे नीचे का आप नहीं हो सकते. नाउ शहजाद साहब, अगर आप थोड़ा सा इसमें इनलाइटन करें, अपनी जिस तरह की हायरिंग वगैरह करते हैं एंड जिस तरह आप लोगों को लेके चलते हैं अपने साथ कि यार दो डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग, दो डिफरेंट ओपिनियन के लोग, दो डिफरेंट स्किल्स के लोग, वो किस तरह आप उनको लेके चलते हैं कि यार हाउ डू यू एक्सेप्ट कि यार ये डिफरेंसेस भी हैं एंड द डिफरेंसेस आर मेड टू एक्चुअली वर्क टुगेदर. सो आपका क्या इसमें से है? जी जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने उठाया है. बेसिकली बहुत सारे लोग, या इवन मैं खुद भी अपना स्टार्ट देखूं व्हेन आई वाज यंग, सो नॉर्मली हमें वो जो लाइक माइंडेडनेस होती है ना, वो अपील करती है, ठीक है. बट क्या लाइक माइंडेडनेस होनी चाहिए? क्या जैसे मैं सोचता हूँ मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप भी ऐसे सोचें, मिस्टर ए भी ऐसे सोचें, मिस्टर बी भी ऐसे सोचें? ये जब आप मिड 40s क्रॉस करते हैं तब आपको समझ में आ जाती है कि ये पॉसिबल नहीं है. सो मेरा ये व्यू है कि वी शुड एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, बल्कि मैं कहता हूँ वी शुड लव ईच अदर्स डिफरेंसेस. हमें एक दूसरे की जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और उससे क्या होता है आपके पास पर्सपेक्टिव्स आते हैं. क्योंकि अगर हर बंदा एक ही तरह का सोचेगा तो आपका वैल्यू एडिशन नहीं होगा, आपके डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ठीक नहीं होगा. और उसके लिए अपने आप को भी सोचना पड़ता है कि आई एम नॉट कि मतलब मुझे हर सवाल का जवाब पता है. जब हम इस सोच में होते हैं, इवन द सीईओ अगर ये सोच ले कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, ये लोग मुझे क्या बताएंगे, तो वो अपना माइंड मेकअप कर चुका होता है, ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है. देन उसको मीटिंग बुला के डिसीजन, वो जो बात होती है ना कि कलेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको बुलानी ही नहीं चाहिए. वो मीटिंग सब सिर्फ उस वक्त बुलाते हैं जब आप लोगों को सुनने के लिए तैयार हो. लेकिन बहुत सारा मटेरियल आपको जो लीडरशिप में मिलेगा, लीडर्स आप जितने भी दुनिया में उठा लें, जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे बड़े बड़े नाम में आता है, महात्मा गांधी का नाम आता है लीडर्स में, नेल्सन मंडेला का एक बहुत बड़ा नाम है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम, या इवन हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका एक बहुत बड़ा नाम है लीडरशिप के हवाले से. अब तमाम लीडर्स की स्किल्स निकालें. आई थिंक लीडरशिप इज ऑलवेज अबाउट लिसनिंग. कोई भी लीडर उठा लें, उसके अंदर लिसनिंग स्किल होगी. लिसनिंग स्किल ये नहीं है कि सिर्फ बैठ के सुनना है. लिसनिंग स्किल इज अबाउट कि आप सुन भी रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस आप उनका जो थॉट्स से आप गुजर रहे हैं उसको आप समझ भी रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप बाद में इसका रिस्पॉन्स देंगे. तो एक्चुअली नेल्सन मंडेला का ये कहना है, मैंने उसके वो जो बायोग्राफी है उसमें भी पढ़ा था
कि ही वाज ऑलवेज लास्ट वन टू स्पीक। और ये उसने सीखा था कि जब उसके साउथ अफ्रीका में फादर जो उसके थे, उनकी एक पंचायत जैसे लगती थी, तो एक वो राउंड टेबल टाइप का एक सेटअप होता था, मतलब लोग इस तरह से बैठते थे गोलाई में। और he had observed, मंडेला अपनी किताब में या जो उसकी बायोग्राफी उसमें उसने ऑब्जर्व किया कि उसके जो वालिद साहब थे वो सबकी सुनते थे और हमेशा सबसे आखिर में बोलते थे। ये क्वालिटी अडॉप्ट की मंडेला ने। तो क्या चीज है जो आप सबको जब सुनेंगे तो एक्चुअली वो सबके अपने अपने व्यूज हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने विजन्स हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम सब जो है ना एक ही इन्वायरमेंट से गुजरे हो। मेरा जो चाइल्डहुड है, मेरा जो स्कूल लाइफ है, मेरा एडल्टहुड है, जो मेरे ट्रेवल्स हैं, जो मेरी फैमिली है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो मैंने वीडियोस देखी हैं, उन सब ने मुझे एक डिफरेंट इंसान बना दिया। ठीक है, वो जो सब सारी चीजें मैंने अब्सॉर्ब की और मैंने अपनी वैल्यू भी ऐड की, क्योंकि मैंने प्रोसेस किया ना हर चीज को यहाँ पर। तो हर इंसान यूनिक है, तो यूनिकनेस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। और जब हम अप्रिशिएट करेंगे तभी हम इसको पहुंच पाएंगे। जो आपका पॉइंट है ना कि डिफरेंसेस को कैसे हैंडल करें, जब हम डिफरेंसेस को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझेंगे, जब हम उसको ब्लेसिंग समझेंगे, जब हम उसमें जानेंगे कि उसमें हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं, देन हम कलेक्टिव विजडम पे जा सकते हैं। आज का दौर या इवन अगर मैं फ्यूचर के दौर की बात करूं, मेरा ख्याल है कि अब हम लोग क्राउड विजडम पे जा चुके हैं, और अगर अभी नहीं तो आइंदा चले जाए। क्राउड विजडम के बगैर हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। क्राउड विजडम इज अबाउट एवरीवन्स विजडम, और जो इसको फॉलो करता है वो इस वक्त दुनिया में सबसे कामयाब तरीन है। ओवर टू यू। Good. So we'll move to the last segment. हम differences पे ही बात करेंगे, and specifically जो COVID की differences हैं, and उससे how has my life been affected and how can I maintain my well-being in the new normal। जो हम हर कोई कह रहा है कि यार new ways of working, new normal। अब इस new normal में मैं अपनी वही चीजें जो मैं पहले करता था उसको मैं किस तरह वापस inculcate करूं new तरीके से। सो इसमें माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, स्पेसिफिकली जो एक वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप हुआ है, एंड नाउ वी आर एक्चुअली मूविंग टू बैक टू वर्क सिचुएशन। तो अगर हम जायंट्स की बात करें, फेसबुक, अमेजोन, तो वी नो कि इन्होंने वर्क फ्रॉम होम ओपन फॉर ऑल पॉलिसी रखी हुई है कि यार इफ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम, इफ यू आर कंफर्टेबल, आप काम करें, वी वांट टू वर्क, वी डोंट वांट टू सी यू प्रेजेंट इन आवर वर्क प्लेस। वर्क इज इम्पोर्टेंट, नॉट योर प्रेजेंस इन द वर्क। सो हम जब ये तो चले बाहर की बात करें, जायंट्स की बात करें, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम इसको पाकिस्तान में देखते हैं, सो 1.5 साल तो हमने देखा कि यार वर्क फ्रॉम होम चला है एंड काम हुआ है इस पे। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हुआ। जो बंदा घर से बैठा था, ही डिडंट क्लोज हिज लैपटॉप, वो अपने लैपटॉप पे लॉग इन करता था, चाहे वो बिस्तर पे लेट के करे, चाहे वो सोफे पे बैठ के करे, ही डिड वर्क। बट अनफॉर्चुनेटली जब से वी स्टार्टेड रिज्यूमिंग बैक टू वर्क, वी डिड सी कि यार ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरू में तो बोला कि यार वर्क फ्रॉम होम अलाउड है, आप करें, बट साइमल्टेनियसली जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, ही वाज बीइंग लुक्ड फ्रॉम अ नेगेटिव आई साइड, एंड many managers or many bosses did not appreciate क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, although he was working, डिलीवरी उसकी पूरी काम की थी, बट it was not being acceptable। so ये क्या चीज थी कि यार पहले 1.5 साल तक तो ये एक्सेप्टेबल थी और काम किया है सबने, बट सडनली वही पासा पलट गया एंड अब वही चीज नहीं हो रही जबकि वो हो सकती है। सो आपके दिमाग में, यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, ये क्या चीज है कि यार वर्क फ्रॉम होम अब नहीं कर सकते या अब नहीं प्रैक्टिकल हो रहा है लोगों से, जबकि हो सकता है बिल्कुल? जी जी, मेरा तो ये ख्याल है कि जब हम इनिशियली गए थे तो बहुत सारे केसेस में हमारी मजबूरी भी थी, ये वाज नो अदर ऑप्शन। देखिए बहुत सारी चीजें, फ्लेक्सी इन्वायरमेंट, वर्क फ्रॉम होम, मैं कोई 10 साल से खुद अपनी प्रीचिंग, मेरी अपनी भी प्रीचिंग थी कि हमें उस पर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था वर्क फ्रॉम होम सिंगापुर में जब कोविड कुछ नहीं था, तो 2012 में भी 2013 में भी हम वर्क फ्रॉम होम करते थे। ठीक है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया भर में पहले से ही कल्चर था, तो वर्क फ्रॉम होम इज नॉट अ न्यू। बट पाकिस्तान में अचानक क्या हुआ कि सबके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो बीसीपी भी सबने इम्प्लीमेंट की और ऑलमोस्ट 99% ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दी।
तो लोगों को एहसास भी हुआ कि, और फिर एक जुमला बड़ा कॉमन है, वर्क फ्रॉम होम वर्क्स, ये सबने रियलाइज भी किया। तो एक कल्चर उस वक्त तो बड़ा अच्छा सेट भी हो गया, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और परफॉर्मेंसेस लोगों की बहुत अच्छी रही। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारी ये बेसिक प्रॉब्लम है, हम एम्पावर नहीं करते लोगों को, हमारी नेचर में नहीं है एम्पावर करना। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है ट्रस्ट का। हम ट्रस्ट कैसे करें कि दूसरा बंदा जो कह रहा है कि वर्क फ्रॉम होम है, वो एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम कर भी रहा है या नहीं। तो जब कोविड की सिचुएशन भी थी, तो जो नॉर्मल जो हम मीटिंग्स करते थे ऑफिस में, वो मीटिंग्स ज़्यादा होने लगी थी। तो मैं अगर ऑफिस में अगर 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम कर रहा था, तो ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन आई रियलाइज कि मैं तो 14 से 16 घंटे काम कर रहा हूँ, यानी उठ रहे हैं और देन उसके बाद मीटिंग्स हैं, ये मीटिंग फला शाम में भी होती थी। तो वर्किंग आवर्स हमारे सबके बढ़ गए थे। उसमें भी मेरा ख्याल है एक ट्रस्ट का एलिमेंट मिसिंग था। सीईओ वांटेड टू हैव एवरीवन इन द मीटिंग, चाहे वो कहीं से भी आए, जूम से आए, मोबाइल से आए, कहीं से भी आए। तो ये कल्चर में हमारी चीज है, एक तो एम्पावरमेंट ना करने की, दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट है। अब ट्रस्ट डेफिसिट एक साइड तो ये है कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए ऑब्वियसली। नाउ अगर मैं अपने सारे एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट कर रहा हूँ और एक बंदा मैं पाया गया कि वो एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम नहीं कर, और 2-3 इंस्टांसेस हुए, तो मैंने उस पर भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया। मैंने जो बाकी लोग थे जो कि उनका कोई फॉल्ट नहीं था, उनका तो कोई इंस्टांस नहीं मिला, मैंने उन पर भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया और मैंने सबको इंडिकेशन दे दी कि अब मंडे से, आने वाले मंडे से मुझे सारा स्टाफ ऑफिस में चाहिए ही चाहिए। सो इट इज टू वे, यानी एक तो मेरा प्रॉब्लम कि मैं लोगों को एम्पावर करूं और ट्रस्ट करूं, दूसरा कि जब लोगों को एम्पावर किया जाता है, ट्रस्ट किया जाता है, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड। तो अगर उसमें से किसी एक बंदे ने या 2 लोगों ने कुछ इस तरह के इंस्टांसेस आ गए जो हमें पता भी है कि दे वर एक्चुअली नॉट वर्किंग, तो फिर एक क्या होता है कि पूरा कल्चर पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट का भी, और जब आप एम्पावर करते हैं तो लोग उसको मिसयूज करते हैं। आई थिंक डॉक्टर साहब का भी अगर कोई भी उसमें है तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर शहजाद साहब ने, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे ये कि ट्रस्ट के अलावा देखिए 2 कॉन्सेप्ट्स इंसान के जहन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका घर, होम एनवायरनमेंट, और एक आपका हर शख्स का वर्क एनवायरनमेंट। जब आप काम पर लैपटॉप बंद करके कहते हो जी मैं घर जा रहा हूं, यू लीव अ पार्ट ऑफ वर्क बिहाइंड, आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है। जी मैं घर आ रहा हूं, मैं कुछ भी करूं। नाउ देखिए ड्यूरिंग द पेंडेमिक वो तो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन, ना पहले किसी ने देखी, लोगों ने जंगें देखी थी लेकिन ये नहीं देखा था कि जो है वो मशरक से मगरिब और शुमाल से जुनूब सब बंद पड़ा हुआ। सो दैट लेड टू अ सिचुएशन कि जी जो भी प्रैक्टिस थी, जो भी काम था, इंडस्ट्री तो चलनी है, काम तो होना है, लोगों को काम करना है, ऐसे हम ठप करके थे। सो दैट वाज अलाउड। लेकिन उसमें रिस्क क्या है कि यू इन्वेड द टू स्पेसेस, आपके काम ने आपके होम एनवायरनमेंट को इन्वेट कर दिया, एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दैट, or the medium to long term effect on your psychological well-being, on your family life, on your social life, on your personal life is going to be huge. जैसे आप कह रहे हो हर एक के आवर्स बढ़ गए थे, जो है वो 6 बजे की भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, रात के 9 बजे की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो जल्दी से लैपटॉप खोलो। शुरू में तो अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है, घर पे बैठ के ही मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो वो बिस्तर जो आराम करने के लिए वो काम की कुर्सी बन गया, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू survive that? It is going to inevitably have a very bad impact on anybody's well-being. Divide है कि जी ये घर है और ये काम है, वो it's very important. It's been there for centuries and it's evolved. Yes, the flexibility should be there. जैसे आप जो है वो वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग कहते हैं, yes, there should be opportunities from remote working. अब जैसे आपको मैं अपने काम की मिसाल दूं, there were lots of meetings that people had to be present in person. उसमें travel time, जगह, and then you have to get there and you have to make sure that you're driving back. All those costs have reduced with remote. अब आप अपने ऑफिस से ही वो मीटिंग Zoom पे या Skype पे ज्वाइन कर सकते हो, so you can do more.
आपका 1 घंटे का जो ट्रैवल टाइम जाने का या 45 मिनट का कहीं पहुंचने का, I don't know about your organization, but my organization covers the whole of Sussex. समझ लें कि कराची से भी बड़ा है, अब एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो है वो मीटिंग अटेंड करने जाना, आप जो है वो क्लिफ्टन से जो है नॉर्थ नाज़मात मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, कितना टाइम कई काम में जाएंगे ना चले वक्त के बाद, तो वो सारा, so time saving in those situations, remote working, the flexibility to work remotely, i.e. from your office, is helpful. या आप घर आके वो मीटिंग अटेंड कर लें different, that is allowed. लेकिन जो invasion of the two spaces has to be thought about, and I think जो लोगों ने कहा है कि जी वापस काम पे आने लगे, it's really important because the health professionals in England at least, or in the UK, are talking about that we need to strike a balance. You have to have a balance between your work life and your personal social life. And if you amalgamate the two together, it will not be good. आपकी फैमिली क्या आपकी इंडिविजुअली आपकी जो है सेहत खराब होना शुरू होगी क्योंकि आप odd hours पे every hour पे काम कर रहे होगे, and then there's an expectation from the employer to do that. And the concept, अरे घर पे तो बैठे नहीं ये काम कर लेंगे, but you actually you're not sitting at home, you're still working. तो ना आप घर पे हैं ना काम पे हैं और आप एक मुसलसल मोड है काम करने का. And I think that's why it's important to go back to work. Secondly, जो small industries attached, to people going to work, transport. आपने कहीं से कॉफी खरीदी, वो हॉकर अखबार खरीदा, पानी की बोतल खरीदी, लंच खरीदा. These all things are made from a small industry. वो खुद से तो कहीं से बन के नहीं आ रहा. कोई अपने घर में छोटा मोटा लंच बना के आपके ऑफिस में लेके आ रहा है जो आप खरीद रहे हैं, उसकी रोजी लगेगी. If you're sitting at home, that is gone. So all those things that are really really important. आप जैसे I can give example of you कि अभी आप ट्रेन लेते हो, ट्यूब लेते हो, आप जाओगे, आपने सुबह को नाश्ता नहीं किया, आपने कॉफी ले ली, दूसरे दिन ये लिया, the till is constantly running. That you are supporting that small business without even realizing that you are. और अगर आप घर पे बैठे काम कर रहे हो तो वो जो एक small hospitality industry है वो तो बैठ जाएगी, उससे बहुत सारे लोगों का रोजगार लगा. So you're generating, actually contributing to the welfare of the society in terms of, the welfare of the economy. वो चीजें, so personally वो space का रहना बहुत important है. Yes, there has to be flexibility and we have to learn from it. जो good practice है कि भाई बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी हैं आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आप घर से बैठ के या आप जो है वो अपनी ऑफिस स्पेस से बैठ के कर सकते हो. So that's one thing. The other thing is, जब आप सिर्फ, if you're only remotely working, you lose the personal human factor, because you can have a discussion online, but when you put people together in a room, there's a personal dynamic that is going on. The body language, the tone of the language, the understanding of which आप एक debate करके एक जो है ये healthy discussion करके एक decision को ले सकते हो. Otherwise it becomes very didactical. आपका एक ईमेल आया, आपके मैनेजर ने या आपके सुपीरियर ने, जो भी है उसका आपके बॉस ने आपको भेजा, अगर आपको नहीं पसंद आया, if you are in the office, when you get a minute, go उठा, can I please come in? आप open discussion कर सकते हो. आप घर में बैठ के वो discussion फोन पे नहीं कर सकते. It will not have the quality that is going to arrive at a solution. And we all are very good unintentionally putting a tone on the text messages and the emails. I will read your email in a mindset I am in. So if I'm a bit irritable at that for one reason or the other, I will read your email in an irritated tone. You might have requested something and I could see it as a demand. So the human factor, the interpersonal relationships in every field are really important. And going back to the point which Yusuf were talking about, the individuality and differences of opinion, that's where the team working comes in. So you harnessed the strength of those individuals. That's what leaders do. They pick on good qualities and strength of people. You may have certain good qualities. I may have certain different good qualities. The role of a leader is to harness all that so that we can have
a mutually agreeable outcome. The differences of opinion is good because it leads to healthy discussions. But at the same time, people shouldn't be rigid. My word is the last word is the wrong thing. You should listen, you should arrive at a conclusion, and you should listen to other people and be flexible and think. And sometimes people have to take difficult decisions, and their word is the last word. And that goes with their role and responsibility, I'm afraid, because they have the knowledge which other people may not have or be privy to at that stage. So those are the things I think that are really important, that why going back to work is also important. It's not only about remote working and comfort, but there should be some flexibility in it. And the other thing is the cultural change we were talking about. So we're expecting organizations to accept a huge cultural change. Yes, we had that change of working from home, remote working due to the pandemic. And as I said, that was globally unprecedented, out of the blue, unheard of experience, which was life-threatening, let's put it that way, with a big inverted comma life-threatening on it, you know, a huge alarm bells ringing sign. But now we are over that. I think people are actually looking forward to going back to some normality, and that is a societal normality. जी मैं काम पे जा रहा हूँ. No, I'm not going to take any responsibility. मैं काम पे जा रहा हूँ. I don't know. I mean, पाकिस्तान में तो अलग है, आपकी मेड आती है सब कुछ मुझे ना. अभी जो वो मीटिंग में एक सेकंड वो कोई बात कर रहा है पीछे से जाके जो है वो टम्बल ड्रायर या जो है वॉशिंग मशीन चला दिया. I might have missed a point during that 30-second. All those nuances are really, really important. Human interaction. We are humans. We are certainly not machines. And let's not hope that we turn into machines. I hope that kind of helps people to think about why it is important to have that system that we've worked, or human beings have been working for centuries. Correct. So it's about being flexible to accepting what the situation is. If you want to work from home, but accept that there's some things which cannot be done at home. And for that, your physical presence is highly valuable and it needs to be there. We'll move to the conclusion of it. So what most people do is they take the key highlights and they start summarizing it. We won't be doing that. We will actually go back to the topic and say that what in a single sentence, if you had to rephrase the topic, what would you put this as? So if Dr. Saab, you can actually read the topic of our presentation and in a single phrase or a sentence, rechange that into what you would actually best put it as. Think about flexibility, positivity, and the contributions you do. That will always help in your mental and physical well-being. Thank you. Shehzad Saab? You want me to summarize your topic, redefining ways of working, right? कि मैं तो ये सोचता हूँ जो मैं खुद follow करता हूँ, जो मैं I can only preach what I am also following. So what I do, and normally एक routine, दो routines है मेरी daily की, generally कभी कभार miss हो जाती है. एक तो ये है कि जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं सबको माफ करके सोऊं. मतलब पूरी दुनिया को जो भी किसी से भी कोई गलती हो गई उसको मेरी जात पे कोई भी चीज नहीं है, कोई कर्जा नहीं है. तो अगर क़यामत है और मिलेंगे तो मुझ पे आपका कोई कर्जा नहीं है. तो इससे फायदा किसको है? इससे फायदा मेरा है. तो किसी और का फायदा हो ना हो, डेफिनेटली मेरा है. तो मैं सुकून से सोता हूँ क्योंकि मैं अपने ऊपर कोई बर्डन लेके नहीं सोता. नंबर 1. नंबर 2, सुबह उठने पे बहुत अरसे से मेरी रूटीन थी और आई वुड ट्राई टू कैच अप इट अगेन. मैं एक दुआ पढ़ता था और दुआ जो है वो बेसिकली इट्स अबाउट ग्रेटफुलनेस. यानी उसमें देखिए जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले तो ये है कि एक मौत के बाद जिंदगी मिली, वो भी तो एक वक्ती मौत ही है ना, जो हम रात को नींद में जाते हैं. तो एक तो उसके बाद दोबारा जिंदगी मिली, अगेन दूसरे दिन का सूरज देखने को मिला, सारी लाइफ सलामत है, सांसें चल रही हैं. तो बहुत सारी नेमतें हैं अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में, अपने आज़ा में. तो वो ग्रेटफुलनेस अगर हम में होगी ना, जिसपे जो नेमतें हैं, जो है,
जो पानी जो जितना गिलास भरा हुआ है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि इतना भरा हुआ है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, इंस्टीड ऑफ लुकिंग एट कि कितना खाली है। जब मैं ये सोचूंगा खाली है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, चाहे वो वर्क हो या लाइफ हो, जब हम नो पे, नेगेटिव पे जब भी फोकस करेंगे, हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होगी, वो मेंटल वेल बीइंग में कभी भी नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम पॉजिटिव साइड पे फोकस करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। इवन होस्टाइल एनवायरनमेंट का बीच में आपने कहा था, अगर होस्टाइल एनवायरनमेंट भी होगा तो भी उसमें काफी पॉजिटिव्स होंगे, आपके हम ख्याल लोग भी आपको मिलेंगे, उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें आपको मिलेंगी। जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव, क्योंकि जिस चीज पे आप फोकस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइज, आपको वही मिलता है। आप नेगेटिव पे फोकस करेंगे, आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, आपके रिजल्ट्स भी आपको उसी हिसाब से नेगेटिव मिलेंगे। नाउ थर्ड, मैं आजकल सुन रहा हूँ किसी एक लेडी को, उसका ये व्यू पॉइंट है कि सिचुएशन से हमारी चीजें नहीं बनती हैं, बल्कि हमारी थॉट्स से, जो यहाँ जो चल रहा है ना, उससे सिचुएशन बनती है। तो मैं अपने थॉट्स के हिसाब से सिचुएशन अपनी खुद बना सकता हूँ। तो जब मैं पॉजिटिव थॉट्स रखता हूँ चीज़ों के बारे में, तो मैं देखता हूँ कि चीज़ें भी खुद ब खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। जब पहले से मैं सोच लूंगा कि फला होगा, ये चीज़ नहीं होगी, बॉस बुरा मान जाएगा, इस दफा अप्रेजल अच्छा नहीं होगा, इंक्रीमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, जब मैं नेगेटिव साइकोलॉजी पे चलता हूँ, और ना सिर्फ अकेला, बल्कि फिर ये इसको हम कलेक्टिवली भी नेगेटिव सोच रहे होते हैं। तो जब एक ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहा होगा अपने तमाम कोलिग्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑलवेज सेंड पॉजिटिव वाइब्स, और पॉजिटिव वाइब्स आपसे वो वक्त सेंड कर सकते हैं जब आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा। तो हम जब सलाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, तो वो सिर्फ वो वर्ड्स नहीं है, वो बेसिकली मैं अपनी सारी फीलिंग, सारे पॉजिटिव वाइब्स आपको पहुंचा रहा हूँ, और वो आपको पहुंचते भी हैं, और वो पॉजिटिविटी आती है जब आप इस तरह से, क्योंकि ये जो सारे जितनी भी है आपको ग्रीटिंग्स हैं, ग्रीटिंग्स से हमेशा आपके पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होते हैं। सो मेरा तो ये पॉइंट है कि पॉजिटिव सोचें। और एक और चीज, डू नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ये लाइफ में अगर आपने अपना लिया तो हमेशा आपका मेंटल वेलबींग रहेगा, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसने मुझे इज्जत नहीं दी, उसने मुझे इंक्रीमेंट नहीं दिया, उसने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, उसने मुझे काम करके अच्छा नहीं दिया, तो इस द आस्किंग साइड, जिसमें हाथ आपका नीचे है, तो हमेशा याद रखिए, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बढ़ता है। बी अ गिवर, आपको कोई नहीं रोक रहा रिस्पेक्ट देने से, तो आई कैन गिव यू रिस्पेक्ट। आप खुद भी नहीं रोकेंगे, मुझे दुनिया नहीं रोक सकती अगर मैं आपको रिस्पेक्ट देना चाहूँ। लेकिन जब मैं आप लोगों से रिस्पेक्ट मांगना चाहूंगा, तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। मैं लोगों से पैसा मांगना चाहूंगा, जॉब मांगना चाहूंगा, इंक्रीमेंट मांगना चाहूंगा, प्रमोशन मांगना चाहूंगा, वो नहीं मिलेगा तो मुझे तकलीफ होगी। तो प्लीज डू नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। सो ये अगर किसी को समझ में आ जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें, ये बैड एक्सपीरियंसेस के बाद मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, जब मुझे अभी समझ आई है। तो आई बिलीव के आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे। तो मैंने आपको वही चीजें बताई हैं जो मैं 80-90% तक खुद फॉलो करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Saab and Sadat Saab, for being a great panelist for today. Now we move towards the closure and we sign off. So, despite your busy schedules, once again, a huge thank you from the medical news team for actually spending time for us, and especially Dr. Saab for actually taking the time out in your busy schedule. For I think we are 4 hours apart, so 4 घंटे के difference से भी आपने attend किया, and सजाद साहब आपने अपनी off duty हमें time दिया. So once again, thank you. Thank you, audience. We now sign off. Goodbye. Thank you. Thank you. Last words. Thank you, Dr. Qasim Ali साहब। मेरा ख्याल है हमें एक और टॉपिक रखना चाहिए, that should be on the forensic psychology। मेरे जहन में कुछ सवाल थे, लेकिन चूंकि टॉपिक उस पे नहीं था, तो कभी आपको टाइम मिले तो we can have a chat offline and then we decide कि एक forensic के ऊपर, मेरा ख्याल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मेरा तो ये ख्याल है कि जितने भी क्राइम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ साइकेट्रिक ही मसला होता है। दिस इज माय व्यू। Thank you for very kind words. Thank you, Yusuf and everybody. And we should have another session, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum, everybody. So, thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.